وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ، بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ. You see, I have, because of Ayurvedic reasons, I have had cow's urine every day I drank. So this was okay. ایک مولوی ہیں، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ ہر چیز میں گوموتر ڈال دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے گوموتر حرام ہے. مسلمانوں کے لیے بھی ان کے مذہب میں لکھا ہوا ہے کہ گوموتر ایک اوشدھی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، قبیلہ عرانیین کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ اصل میں تھے منافق، اور وہ صحابہ کو دھوکے سے لے گئے، انہوں نے لے جا کے قتل کر دیا. تو جب وہ مدینہ آئے تھے تو ان کے پیٹ میں درد تھا، تکلیف تھی، پیٹ پھولنے لگے تھے ان کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اشربوا من البانہا و ابوالہا، ان کو اونٹوں کا دودھ پلاؤ اور پیشاب. بول کی جمع ابوال آتی ہے. تو اس حدیث کی بیس پہ بعض فقہا اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پیشاب حلال ہے اور بیماری میں پیا بھی جا سکتا ہے. لیکن امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہا اس طرف گئے ہیں کہ اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح حرام ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب حرام، اور بالکل اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے. اور اس کے دلائل بھی بہت واضح ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیشاب سے بچو، یعنی چھینٹوں سے بھی بچنے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے فرق نہیں کیا کہ کس کا پیشاب، ہر قسم کا پیشاب اس میں داخل ہے. دوسری بات یہ کہ اس حدیث سے اگر یہ ثابت ہوتا کہ پیشاب اونٹ کا اسلام میں حلال ہے یا پیا بھی جا سکتا ہے تو صحابہ نے کسی نے تو اس حدیث پر عمل کیا ہوتا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ہمیں کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی جس میں اونٹ کا پیشاب پینے کا کوئی ذکر ہو، اور کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا نہیں ملتا. حالانکہ پیٹ کی بیماریاں تو تھیں اس دور میں بھی اور بعد میں بھی ہوئی ہیں، کسی نے بھی نہیں پیا. تو امام حنیفہ اور بعض فقہا کے نزدیک اس حدیث کا یہ ایک جزوی واقعہ ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی دوسری چیز میں نہیں ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی شخص مر رہا ہو اور اسے پتا ہو کہ میرا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے ناپاک چیز بھی کھائی جا سکتی ہے، حرام چیز بھی کھائی جا سکتی ہے. اس پر امت کا تقریباً اتفاق ہے. تو ناپاک ہونے کے باوجود چونکہ ان کی بیماری کا علاج اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں تھا، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی پتہ چلی ہوگی، وحی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اب وحی کا دروازہ بند ہے. تو اب اگر کوئی ڈاکٹر کسی کو کہتا ہے کہ آپ کی بیماری کا علاج پیشاب اونٹ کے پیشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو اس کے لیے حلال ہے. بلکہ اگر کوئی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ کے بیماری کا علاج گائے کے پیشاب یا فلاں جانور کے نجاست کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے تو یہ بھی جائز ہے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے. لیکن میڈیکل سائنس فی الحال ایسا کہتی نہیں ہے. تو اس لیے جب تک کوئی ڈاکٹر ریکمنڈ نہ کرے آپ کو اور یقین نہ ہو کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہیں ہے، تو آپ اس وقت تک پیشاب نہیں پی سکتے، کیونکہ نجس ہے، حرام ہے. اور حلال چیزوں سے ہمیں پہلے حکم ہے کہ ہم دوا کریں. حلال چیزوں میں اگر کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جس میں آپ کی بیماری کا علاج ہے، پھر مجبوری میں آپ جان بچانے کے لیے مردار بھی کھا سکتے ہیں، تو یہ بھی کر سکتے ہیں. تو راجح قول ہماری رائے میں یہی ہے، اور بعض عرب علماء نے بھی اسی کا امام حنیفہ کے قول پہ اس معاملے میں فتویٰ دیا. اس پر انٹرنیٹ پر ان عرب علماء کی بھی تحقیق ہے کہ جو ہے نا یہ پیشاب، کیونکہ یہ حدیث اگر قاعدہ کلیہ ہوتی تو صحابہ اس پر ضرور عمل کرتے. تو قاعدہ کلیہ نہیں ہے اور یہ ایک جزوی واقعہ ہے، اور اللہ کے نبی کو علم ہو گیا ہوگا. باقی پیشاب کے بارے میں جو وعیدیں ہیں وہ شدید ہیں، ان میں ہر قسم کا پیشاب شامل ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے بھی کبھی اونٹ کے پیشاب کو پاک نہیں سمجھا. ہمیں کوئی ایک صحابی بھی نہیں ملتا جنہوں نے یہ کہا ہو کہ اونٹ کا پیشاب آپ پی سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز ہے. اس لیے اونٹ کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جیسے دوسرے جانوروں کا پیشاب ناپاک ہے، بکری کا اور دمبے وغیرہ کا. آسک مفتی طارق مسعود. کہتے ہیں کہ وہ مجھے دبئی سے جانتے ہیں ماشاءاللہ، اور کئی سالوں سے میرے تقریر سن رہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے تجربے کے حساب سے وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اچھے لوگ ہیں، سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کا پیسہ نہیں کھاتے. لیکن ایک ان کو مسلمانوں کے بارے میں ایک چیز جو کھٹکتی ہے کہ مسلمان گائے کا گوشت کیوں کھاتے، وہ ان کا سوال ہے.
मैं पहले बोलना चाहता हूँ भाई साहब आनंद जी कि एक मुसलमान अच्छा मुसलमान रह सकता है 100% शाकाहारी होने के बाद भी. A Muslim can be a good Muslim even by being a pure vegetarian. शुद्ध शाकाहारी होने के बाद भी एक मुसलमान 100% अच्छा मुसलमान रह सकता है. लेकिन क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा रब, हमारा खालिक, कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते कि आप उन 4 पायों जानवरों का गोश्त खा सकते हैं जिनकी हमने इजाजत दी है. अल्लाह ताला फरमाते सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि आप कैटल का गोश्त खा सकते हैं. कुरान में जिक्र आता है सूरह मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 21 में कि आप कैटल में से आपको मिलता है दूध, उनमें से मिलती है आपको गर्मी और आप इनका गोश्त खा सकते हैं. तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा खालिक, हमारा मालिक कहता है कि आप गोश्त खा सकते, तो क्यों हमें नहीं खाना चाहिए? मैं आपको कोशिश करूंगा बताने के लिए कि आज की साइंस ये कहती है कि हमारे जिस्म में हमको प्रोटीन की जरूरत है, कम से कम 23 अमीनो एसिड की जरूरत है. यही 23 में से 8 अमीनो एसिड हमारे जिस्म में नहीं बनते. उसके लिए फर्ज है कि ये हमारे खाने में हमें ये अमीनो एसिड मिलना चाहिए. कोई भी शाकाहारी, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें आटों के आटो अमीनो एसिड मौजूद है. फ्लैश में, गोश्त में आटो अमीनो एसिड मौजूद है. इसे साइंस कहती है कंप्लीट प्रोटीन, कंप्लीट फूड. आज साइंस ये कहती है कि फ्लैश फूड में, गोश्त में प्रोटीन है, नियासिन है, विटामिन B1 है. इससे सेहत अच्छी बनती है. और आज आप देखेंगे जो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, जो सिर्फ भाजी पाला खाते हैं, भेड़, बकरी, गाय, आप देखेंगे इन जानवरों के दांत इनके चपटे हैं, उनके पास हर्बिवोरस सेट ऑफ टीथ है. ये सिर्फ भाजी पाला खाते, गोश्त खा ही नहीं सकते. जब आप देखेंगे मांसाहारी जानवर के दांत, शेर बब्बर, चीता, उनके नोकीली दांत होते हैं. ये सिर्फ गोश्त खाते हैं, भाजी पाला खा ही नहीं सकते. जब आप अपने दांत आईने में देखेंगे तो भगवान ने, ईश्वर ने, हमारे खालिक ने हमें दोनों दांत दिया है, चपटे दांत भी दिया है और नोकीले दांत भी दिया है. अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाएं तो ये नोकीले दांत क्यों दिया? गोश्त खाने के लिए. आज की साइंस कहती है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हर्बिवोरस एनिमल का, गाय, भेड़, बकरी के, वो सिर्फ भाजी पाला डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त को डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. जो डाइजेस्टिव सिस्टम कार्निवोरस एनिमल का है, चीता, शेर बब्बर, ये सिर्फ गोश्त डाइजेस्ट कर सकते, भाजी पाला नहीं. लेकिन हम इंसानों को अल्लाह ताला ने, हमारे ईश्वर ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी दिया है, बिग इंटेस्टाइन भी दिया है. हम भाजी पाला भी डाइजेस्ट कर सकते, गोश्त भी डाइजेस्ट कर सकते. अगर हमारा ईश्वर चाहता था कि हम सिर्फ भाजी पाला खाएं तो हमें ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों दिया जो गोश्त को भी डाइजेस्ट कर सकता है? तो साइंटिफिकली हमारा जिस्म हमारे ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि हम भाजी पाला भी खा सकते हैं, गोश्त भी खा सकते हैं. और बहुत लोग को गलत फहमी है कि हिंदू मजहब में गोश्त खाने की ममानियत है. भाई आप हिंदू है ना? आपके नाम से लगता है आप हिंदू है. हिंदू है ना सर? जी हिंदू ही है. आप हिंदू है ना? हाँ बिल्कुल सही, आपके नाम से लग रहा है आनंद आपका नाम है, आप हिंदू है. आपको गलत फहमी होंगी कि हिंदू मजहब में गोश्त खाना हराम है. आप जब हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं, आपके मजहबी किताब में लिखा है कि गोश्त भी खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं और बीफ भी खा सकते हैं, गाय का गोश्त भी खा सकते हैं. आप जब पढ़ेंगे मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि अगर खाने वाले जानवर, अगर खाने वाले मखलूक उस चीज को खाती है जो खाने वाले जानवर है, तो आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, क्योंकि ईश्वर ने कुछ मखलूक को बनाया है खाने के लिए और कुछ मखलूक को खा जाने के लिए. सम टू ईट एंड सम टू बी ईटन.
तो अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं कर रहे। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 31 में कि अगर आप पूजा के लिए जानवर को कत्ल करते हैं तो कोई गुनाह नहीं करते। लिखा है मनुस्मृति में अध्याय नंबर 5 श्लोका नंबर 39 और 40 में कि ईश्वर ने कुछ जानवर को बनाया है पूजा के लिए, सैक्रिफाइस के लिए। तो किलिंग इन सैक्रिफाइस इज नॉट किलिंग, तो कत्ल करना पूजा में कत्ल नहीं है। तो मनुस्मृति के मुताबिक आप गोश्त खा सकते हैं। फिर आप जब मुताला करेंगे महाभारत का, महाभारत में अनुशासन पर्व में अध्याय नंबर 88 में युधिष्ठिर, पांडव के 5 भाई थे, आपने युधिष्ठिर का नाम तो सुना होगा। युधिष्ठिर जो पांडव के 5 भाई थे, युधिष्ठिर पांडव में सबसे बड़ा भाई था। वो पूछता है भीष्म से कि हम यज्ञ में, पूजा में क्या खाना दे ताकि हमारे परदादा खुश होंगे। तो भीष्म कहता है अगर हम यज्ञ में, पूजा में चावल, बार्ली, सेब, भाजी पाला देंगे तो हमारे परदादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर हम मछली देंगे तो 2 महीने के लिए, अगर गोश्त देंगे 3 महीने के लिए, अगर खरगोश देंगे तो 4 महीने के लिए, अगर बकरी देंगे तो 5 महीने के लिए, अगर सुअर देंगे तो 6 महीने के लिए, अगर परिंदा देंगे तो 7 महीने के लिए, अगर हिरन देंगे तो 8 महीने के लिए, अगर बैल देंगे तो 11 महीने के लिए, अगर गाय देंगे तो पूरे 1 साल के लिए हमारे परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। दूध की बात कर रहे हैं सर। आप बफेलो देंगे, बफेलो तो 12 साल के लिए, अगर राइनोसरस देंगे या रेड मीट, लाल गोश्त, तो हमारे परदादा हमेशा के लिए संतुष्ट रहेंगे। पूरा मेन्यू है महाभारत में, हिंदू किताब में पूरा मेन्यू है। क्या चाहते हैं, भाजी पाला, मछली, गोश्त, खरगोश, हिरन, बीफ, बड़े का छोटे का सब है। आप अगर वेद पढ़ेंगे, वेद में भी लिखा है कि संत और साधु गोश्त खाते थे, गाय का गोश्त भी खाते थे। फिर आप क्यों कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है? क्योंकि बहुत से हिंदू लोग बाकी मज़ाहिब से प्रसन्न हुए। मजहब से प्रसन्न होने के बाद कुछ मजहब मानते अहिंसा में, और वो समझते हैं कि जानवर को कत्ल करना गुनाह है। क्यों? क्योंकि जानवर में जान है, बाजी पाला में जान नहीं है, पेड़ पौधों में जान नहीं, इसलिए बाजी पाला खाना गलत नहीं है, लेकिन जानवर खाना गलत है। आज साइंस तरक्की कर चुका है और हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में भी जान है, तो उनकी लॉजिक जरा बदल गई। हाँ जाकिर भाई, हम जानते हैं पेड़ पौधों में जान है, लेकिन पेड़ पौधे, उनको दर्द का एहसास नहीं है, उन्हें दर्द नहीं होता। पेड़ पौधों को दर्द नहीं होता है और जानवर को दर्द होता है, इसीलिए जानवर खाना बड़ा गुनाह है, पेड़ पौधे खाना कम गुनाह है। आज साइंस फिर से तरक्की कर चुका है। तरक्की करने के बाद साइंस ये कहती है कि पेड़ पौधों को भी दर्द होता है, लेकिन उनकी दर्द की आवाज आपको सुनाई नहीं देती। हम इंसान सिर्फ 20 साइकिल्स और 20,000 साइकिल्स के दरमियान फ्रीक्वेंसी में सुन सकते, इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं सुन सकते। वो चीखते हैं लेकिन हमें उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तो एक शख्स ने मुझसे सबसे ज्यादा बहस किया और कहा कि जाकिर भाई, मैं मानता हूं कि पेड़ पौधों में जान है, पेड़ पौधे को दर्द होता है, लेकिन पेड़ पौधों में सिर्फ 2 या 3 सेंसेस है, जानवरों में 5 सेंसेस है, इसलिए जानवर का कत्ल करना बड़ा गुनाह है। तो मैंने उससे पूछा कि अगर आपका भाई पैदा होता है 2 सेंसेस कम के साथ, वो सुन नहीं सकता है और बात भी नहीं कर सकता है, गूंगा है और बहरा है, जब वो बड़ा होता है और अगर कोई इंसान उसका कत्ल करता है तो क्या आप जाके कहेंगे जज से, मिलॉर्ड कातिल को कम सजा दो क्योंकि मेरा भाई गूंगा था, बहरा था, वो सुन नहीं सकता था, बात नहीं कर सकता था? आप तो कहेंगे कातिल को डबल पनिशमेंट दो, मेरा भाई तो मासूम था, ना सुन सकता था ना बात कर सकता था। इस्लाम में 2 सेंसेस जैसे 2 सेंसेस वो नहीं। इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 168 में 168 में, ईट ऑफ द गुड थिंग्स विच अल्लाह हैज प्रोवाइडेड यू, जो अच्छी चीज आपको आपके अल्लाह ने दी है उसको आप खा सकते हैं।
तो आप अगर मुताला करेंगे मजहबी किताबों का और साइंस का, गोश्त खाना कोई गलत नहीं है। और मुझे खुसूसन कोई गिला शिकवा नहीं अगर गैर मुस्लिम, अगर हिंदू गोश्त नहीं खाते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि अगर सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो हिंदुस्तान में गोश्त का भाव बढ़ जाएगा। आज महंगाई का जमाना है, पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है, सब हिंदुस्तानी गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा। तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं आप अगर गोश्त नहीं खाते। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि गोश्त खाना गलत है तो आपको आपके मजहबी किताबों के बारे में नहीं पता है और साइंस का भी नहीं पता है। अगर आप कहेंगे किसी की जान नहीं लेना चाहिए तो आप 2 मिनट भी जी नहीं सकते। हम जो सांस ले रहे हैं ये जर्म्स है, जर्म्स में भी जान है, आप सांस लेने से उनका कत्ल कर रहे हैं तो आप जी नहीं सकेंगे। इस्लाम में ये है कि जो चीज की इजाजत है वो आप खा सकते हैं, जो हराम है उसको नहीं खाना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन।